सबको यस सबको रिक्वेस्ट ये है कि अपना कैमराज ऑन रखें। रिकॉर्डिंग में आपके सबके खिले हुए चेहरे, तो प्रसन्न चेहरे भी आएंगे और अच्छा भी दिखेगा, सबको पता चलेगा, क्योंकि वी वांट टू डू इट इंटरैक्टिव सेशन, है ना। यस तो पहला होता है श्रवण, फिर थोड़ा सा मनन, फिर थोड़ा डिस्कशन, चिंतन बोलो जो भी, ठीक है ना। तो अपना कैमराज ऑन रखते हैं। यस जो आपने भेजा है अकॉर्डिंगली आई एम गोइंग। If I'm not correct, you can correct me, Mayurji. Yes. So this is about desires. We are going through this precious book, Celebrating Silence, जिसमें गुरुदेव के सिलेक्टेड नॉलेज शीट्स है। और गुरुदेव हमेशा ये बुक के बारे में ऐसे बोलते हैं कि ये हमारे सबके घर में होना चाहिए, should be handy with all of us। ऐसा ये इतना सुंदर प्रेशियस बुक है। So about desires, all desires are for happiness. That is the goal of desire, isn't it? But how often does your desire lead you to the goal? Have you thought about the nature of desire? It simply means tomorrow and not now. But joy is never tomorrow. It is always now. How can you have desires when you are joyful? And how can you really be joyful right now when you have desires? Desire appears to lead you to happiness, but in fact, it cannot. That is why desire is Maya, illusion. This was in March 6th, 1996 in Bangalore Ashram. इसका next है, how does a desire arise? A desire arises with the memory of a pleasant experience or with past impressions. A desire might also arise through listening. A desire can be triggered through association with certain people or certain places. Someone else's need or desire may manifest in you as your own desire. When someone is hungry, you might have a desire to feed them. Or if someone wants to talk with you, a spontaneous desire may arise in you to talk with them. Destiny or a happening in which you have a part to play may trigger a desire, but you will not be aware of the reason for your actions. For example, the gentleman in Quebec, Canada, built roads and worked on a farm for 30 years, not knowing for what. The farm was destined to become our Montreal ashram, and the roads he built are the roads we use now. Yes. Huh? और भी है, वो आगे पढ़ लेंगे पहले पूरा। Yes. Desires arise on their own without asking you. And when they come, what do you do with them? If you say that you do not want any desires, then that want becomes another desire. Here is a clue for you. If you want to go to a movie, you have to buy a ticket, and this ticket must be given to the doorman. If you hold on to the ticket, how can you go in? Similarly, if you want to be admitted to college, you must complete an application form and submit it. You cannot hold on to it. Likewise, on the journey of life, you have to keep submitting your desires and not hold on to them. As you keep submitting your desires, then fewer desires arise. Unfortunate are those who keep on desiring
yet their desires are not fulfilled. A little more fortunate are those whose desires get fulfilled over a long period of time. More fortunate are those whose desires get fulfilled as soon as they desire. The most fortunate are those who have no desires because there is fulfillment even before the desire arises. How many of us are feeling this category? Most fortunate, I feel. Yes, good. This was in Rishikesh, Swargashram on March 20, 1996. And the next one, last one for today is Buddha said that desire is the cause of all misery. If your desire does not get fulfilled, it leads to frustration and causes misery. And if your desire does get fulfilled, it leaves you empty. Vasishtha said that desire is the cause of pleasure. You get pleasure from an object or a person only when you desire them. When you do not desire an object, you will not get pleasure from it. When you are hot and thirsty, a sip of cold water gives you pleasure. But there is no pleasure if you are not thirsty. Whatever gives you pleasure binds you, and bondage is misery. I tell you, when you desire truth, all other desires drop off. You always desire something that is not there, but truth is always there. Desire for truth removes all other desires, then it dissolves, and what remains is bliss. This was in Indonesia, Bali, May 11, 2000. For few seconds, or I can say for 1 minute, we can close our eyes. ये हमने अभी पढ़ लिया, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा या सुना होगा. Whatever we have absorbed, we can just go through it. कुछ तो हिट हुआ, कुछ तो रजिस्टर हुआ, कुछ बहुत ज्यादा अपील हुआ. And take a long deep breath in. And as you exhale, relax totally. Very slowly, you can open your eyes. तो सबको मेरा रिक्वेस्ट ये है, जो भी आज हमने कुछ तो सुना सीखा, व्हाट वाज द टेक अवे पॉइंट, आप चैट में डाल सकते हो या अनम्यूट करके बात कर सकते हो, जो भी तरीके से आपको सुटेबल है. यू कैन पुट दैट इन द चैट बॉक्स, नो प्रॉब्लम. आपका जो भी पॉइंट रहा है, या यू कैन स्पीक आउट. या आप लोग अब अनम्यूट कर सकते हैं, आप चेंज द सेटिंग. Yes.
हाँ यस, बोलो, क्या चैट में डाला है किसी ने? नहीं ना, कुछ नहीं है। Who wants to say? बोलो, दया जी, वैशाली, जो भी आप हाँ बोलना चाहते हैं बोलो। जय गुरुदेव। हाँ बोलो रागिनी जी। हम लोग को डिजायर जितना होते उतना ही दुख हो जाते, हम लोग दुख होते। डिजायर ना कम होना चाहिए, डिजायर ज्यादा होएगा तो उतना ही दुख हम लोग को जाते। मेरा एक्सपीरियंस है, इसके लिए हम लोग ज्यादा इच्छा नहीं रखने का, इच्छा ज्यादा रखेगा तो दुख में जाते। जो होने दो, बस वही तो मेरा एक्सपीरियंस है दीदी। ओके फाइन, यस। अपना misery in the life is directly proportional to our desires. When the desire gets fulfilled, we come back to the same spot. Then we feel, what did we achieve? Yes, Mayati. दुख का कारण इच्छा है। हाँ बोलो वैशाली। दुख का कारण इच्छा है, इच्छा है। हाँ, अगर इच्छाएं नहीं होती तो हम कितने सुखी होते। हाँ रियली, बट इच्छाएं नहीं होती तो हम कुछ करते भी नहीं थे ना। हाँ, मतलब एक प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी। हर एक चीज को होता है ना, ऑपोजिट वैल्यू। यस, इच्छाएं रहे तो कुछ सीख भी पाएंगे हम लोग। हाँ, है ना? यस यस, एनीबॉडी एल्स? I have a question. Can I ask? यस यस। जैसे कि डिजायर्स है तो उनको सरेंडर करना चाहिए, सबमिट द डिजायर। Yes. That total submission does not happen. You hold on to a little part of it. Ah. How to do that? I mean, how do you really know that you have surrendered the desire totally? Very good observation, Ashwini, and a very good question also. But ये observation कितने लोगों का है? हम पूरी तरह से सबमिट नहीं कर पा रहे, डिजायर्स को ड्रॉप नहीं कर पा रहे, है ना? पता है, सरेंडर सरेंडर बहुत यूज किया है शब्द, बहुत ज्यादा, है ना? वो तो घिसा पिटा हो गया, बट वो हो नहीं रहा है। तो बेसिक चीज क्या है, गुरुदेव बोलते हैं, सी गुरुदेव ने सब कुछ बताया, फिर सबमिट करने का एक दो एग्जाम्पल भी बताया। जैसे मूवी थिएटर में गए तो टिकट सबमिट किए तो अंदर एंट्री मिलेगा, है ना? जैसे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए तो आपको एडमिशन मिलेगा, कॉलेज में हो या कोई इंस्टीट्यूशन में हो या कोई ऑफिस में भी हो, है ना? तो ये एग्जाम्पल्स बहुत ही अपने डे टू डे लाइफ के, प्रैक्टिकल लाइफ के हैं। बट कुछ डिजायर्स है जो हमें ऐसे पकड़ लेती है। तो होल पॉइंट इज व्हाट, बचपन से हमने पकड़ना सीखा है, अभी छोड़ना कब सीखेंगे? लेटिंग गो, ड्रॉपिंग इट, है ना? तो पकड़ने का देखो, छोटे बच्चे को देखो ना, उसका इतना ग्रिप होता है, मुट्ठी में कुछ भी पकड़ेगा, छोटा सा टॉय हो या आपके बाल हो या आपका कोई कपड़ा भी खींचता है, कितना अच्छे से पकड़ लेता है। कहाँ से ताकत, इतना छोटा बच्चा है, बट इतना अच्छे से पकड़ना तभी से सबको पता है, सीख लिया हुआ है। तो छोड़ने को तो अभी हम तैयार ही नहीं है, इतने साल से, वॉट एवर इज अवर लाइफ, 50 years, 30 years, 40 years, पकड़ ही रहे बहुत सारी चीजों को भी और अपने मन की इच्छाओं को भी, है ना? और सिर्फ पकड़ नहीं रहे, बहुत चीजों का संग्रह भी करते गए, बहुत बहुत एक्यूमुलेट किया, ये हुआ वो हुआ। बट यू टेल मी, what we have learned from this situation, lockdown and COVID situation, जब सडनली अनाउंस हुआ लॉकडाउन है, बहुत कम टाइम मिला अपने को कुछ तैयारी करने के लिए, एक्यूमुलेट करने के लिए चीजें, बट जो भी था अपने पास, घर है तो कुछ तो जरूरी चीजें थी अपने पास, जो भी था रिसोर्सेस, उससे अपना सब अच्छे से चला कि नहीं चला कुछ दिनों तक? टेल मी, कितने लोगों का ऑब्जर्वेशन है? हम अच्छे से चला पाए। इनफैक्ट जो भी पॉसिबिलिटी था उसमें बेस्ट करने के लिए नए नए क्रिएटिव आइडियाज से रेसिपीज बनाए, कुछ चीजें बनाई, जो फेस्टिवल्स भी मनाए लॉकडाउन में, उसमें भी घर में जो चीजें अवेलेबल थी उसी से कुछ क्रिएटिव बना के हम लोगों ने सेलिब्रेशन भी किया। कितने लोगों का ये अनुभव रहा? यस।
तो वो ड्रॉपिंग हो गया वहां पर। नहीं तो मुझे ये चाहिए, मुझे मैंने उधर ये देखा है, मुझे उसके पास ये देखने को मिला था, अब भी चाहिए, मेरे घर में इधर ये लगाना है, सो मेनी डिजायर्स। तो जैसे गुरुदेव ने बताया कहाँ कहाँ ट्रिगर होता है, किसी से कुछ सुन लिया, आपके फ्रेंड ने बताया मैंने उधर से जाके ये चीज लाई, फिर किसी के घर में आपने लगाया हैंगिंग और देखा हो, किधर और कुछ पता है, इतना सारा चीजों से by different senses those desires are getting triggered inside and then पकड़ और ज्यादा ज्यादा हो जाती है, ऐसा ही चाहिए, फिर ऐसा ही मिलना चाहिए, अब भी का अब भी चाहिए, और उसके पीछे फिर भागते रहते हैं, उलझते जाते हैं, नहीं मिला तो दुखी हो जाते हैं, मिल भी गया तो कभी कभी कंपैरिजन में फंसते हैं। या हैव यू ऑब्जर्व दिस? तो मैं ये बता रही हूँ, सीटी कंफर्मेटरी टेस्ट, दो चीजें हैं। When your mind is relaxed, it will start letting go naturally. By deep relaxation and rest to the mind and our system, this happens naturally and automatically. क्योंकि मन बार बार कुछ न कुछ करने में उलझा हुआ है, isn't it? मन को एक्टिविटी और एक्टिविटी ही चाहिए, कुछ भी नहीं करना ये मन को पता नहीं है, पसंद भी नहीं है, बार बार करना चाहता है कुछ कुछ। एंड व्हाट हैपेंस इन दैट, जो सिलसिला चला हुआ रहता है, सीक्वेंस ऑफ डिजायर, सीक्वेंस ऑफ सो मेनी थिंग्स, वी स्टार्ट आइडेंटिफाइंग आवरसेल्व्स विथ आवर डिजायर्स, फीलिंग्स, इमोशंस एंड थॉट्स। हैव यू ऑब्जर्व्ड दिस? Identifying yourself with thoughts, feelings, emotions and desires, that is a bondage. Identifying yourself with pure consciousness is enlightenment. है ना? तो बार बार गुरुदेव भी हमें यही बता रहे, हमारे अंदर की बहुत सुंदर दिव्य चेतना, सुंदर चेतना है, शक्ति है, उसके साथ एक रूप तादात्म्य बोलते हैं गुरुदेव, तादात्म्यता उसके साथ हो गई तो ये बॉन्डेज से निकलना नेचुरल है, आसान है। पर तादात्म्य हमारा किससे होता है? I am what I feel, I am what I think, which is not the truth, which is not the reality. Are you getting this? Yes, Ashwini, कुछ ठीक लग रहा है? Yes. तो ये जो गड़बड़ है, बॉन्डेज कहाँ से शुरू होता है? I am what I feel, I am what are my emotions. My God, इसमें हम जब उलझ जाएंगे तो कभी भी लेट गो या छोड़ना या ड्रॉप करना संभव नहीं होता है। इसलिए ये जब सजगता मन में आ गई तो अभी आपको पता चला, ये सबमिट करना, ये सरेंडर करना या ड्रॉप करना इतना आसान नहीं है। ये इतना तक तो पता हो गया है ना? तो अभी वी हैव टू वर्क ऑन रिलैक्सिंग। आ गया, स्ट्रांगली आ गया, बट स्टिल आई एम विलिंग टू ड्रॉप। तो पहला स्टेप है आपका विलिंगनेस। फिर मन में संकल्प उठता है, तो ये संकल्प का महत्व है कि यस, मुझे ये डिजायर से बाहर निकलना है, छोड़ना है या सबमिट करना है। जो भी आपके मन में संकल्प आएगा, मुझे ये सबमिट करना है, तो यू विल गेट सीटी। मतलब क्या? डिजायर से गड़बड़ कब होती है? डिजायर से तो अकॉर्डिंगली मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या हो रहा है, मेरा ऑब्जर्वेशन मैं बता रही हूँ, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन पीरियड्स वी गेट टू मेनी नॉलेज सेशंस। कुछ हमारे ही डिवोटीज का ऐसे भी हो रहा है, एट ए टाइम कितने सारे हो रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँ? मैंने तो इतना तक देखा है, एट ए टाइम 3 ऑन रखते हैं, पता नहीं वो कहाँ का क्या सुनते हैं, और फिर कैसे कैसे सारा मिक्सचर कंफ्यूजन में चले जाते हैं। कभी कभी वो खिचड़ी पक जाती है मिक्स करके, और होता क्या है, ये सारा सुनने के बाद समथिंग वी नीड टू अप्लाई इन अवर लाइफ, है ना? कुछ मन में इच्छा उठी, कुछ विवेक बुद्धि जागृत हुई, आपने कुछ डिसीजन लिया, तो एक्शन में ट्रांसलेट होना ये भी तो जरूरी है। एग्जीक्यूशन होना चाहिए। जो एक्शन में लगे हुए हैं उनकी इच्छाएं आसानी से ड्रॉप होने लगती है। Isn't it, मयूर जी? What is your experience? है ना? जो एक्शन में, इसलिए बार बार गुरुदेव आजकल बोल रहे, मुझे क्या करना है
उस पर ध्यान ले जाओ। समझ में आ रही है बात? मुझे क्या करना है, मैं कैसे सबके काम में आ जाऊं, मैं हाउ कैन आई बी यूजफुल टू एवरीवन एंड अदर्स, हाउ कैन आई यूजफुल टू दिस सोसाइटी एंड टू दिस एनवायरनमेंट, इसके बारे में सोचेंगे तो एक्शन में भी लाएंगे, सिर्फ सोचना नहीं। उसके बारे में सोचा, कुछ गुरुदेव का गाइडेंस है, पता चला और एक्शन में शुरुआत की, तो आपको ये बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए जितना इम्पोर्टेंट है साधना, उतना ही इम्पोर्टेंट है सेवा। दे आर ऑपोजिट वैल्यूज एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये हमने देखा है, इतना हद तक देखा है, जो अपने डिवोटीज है जो सेवा में लगे हुए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। बहुत साल से, अभी ये बहुत पुराने हो गए दिन, फिर भी ऐसे था, एक ऐसे ट्रेडिशन बन गया था, एवरी ईयर जनवरी अराउंड संक्रांति टाइम गुरुदेव का महाराष्ट्र विजिट होता था, और महाराष्ट्र के अलग अलग जगह पर उनका विजिट रहता था। अपने यहाँ भी एक बार आए, ठाणे में भी, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में उनका डेट मिलता था वैसे। तो वो डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे युवाचार्य, हमारे सारे डिवोटीज ऐसे काम में लग जाते थे कि दिन रात उनको ना किसी चीज का, कोई खाने पीने का, किसी चीज का कुछ पता ही नहीं रहता था, और वो दिन तक वेट करते थे। और गुरुदेव तो उनको पूछते थे, सत्संग हो गया, कोई बड़ा इवेंट जो भी प्लान था वो हो जाने के बाद, अरे भाई आप सब लोग बैठ जाओ, अब थक गए होंगे। तो ये तो कोई बैठने को भी तैयार नहीं, खिले हुए चेहरे, प्रसन्नता से बोलते थे गुरुदेव को, गुरुजी थकान तो लगी ही नहीं। तो ये जो है ना, ये मैंने भी बहुत बार अनुभव किया है। तो ये जो काम में, जब डिवाइन पर्पस से, काम से हम बहुत बिजी हो जाते हैं, तो थकान महसूस ही नहीं होती है, ना कोई डिजायर्स, ना कोई थॉट्स, कहीं भी कुछ उलझन में फंसते नहीं है। और नॉट ओनली दैट, इतना तक एक बार ये युवाचार्य ने बताया गुरुदेव को कि गुरुदेव हम लोग इतना ट्रैवल करते थे, रोज रोज इधर से उधर अलग अलग गांव में जाके कुछ कुछ हमारा चलता था, कभी सत्संग, कभी कुछ दूसरा ध्यान कराओ, कुछ और कराओ। तो चार्जर कैरी करना भूल गए, मोबाइल तो जरूरी चीज बन गई थी तब तक। तो बोले कि चार्जर नहीं लेके गए। तो क्या किया हमने, गुरुदेव आपके फोटो के सामने मोबाइल रख दिया और वो चार्ज हो गया। गुरुजी सेइंग, अरे भाई क्या बात कर रहे हो, मैं भी अपना फोन चार्जर पे लगाता हूँ। See, that is the power of devotion and seva, isn't it? तो ये ऐसे लगे हुए जो लोग हैं, जो व्यक्ति है, जो डिवोटीज है, उनकी इच्छाएं नहीं ड्रॉप हो जाएगी क्या? तो ही तो वो इतना काम लगन के साथ कर सकते हैं दिन रात, है ना? तो मैं तो बोलती हूँ, अपने को सारी जिम्मेदारियां है, नो डाउट अबाउट इट। एवरी स्मॉल वर्क इज इम्पोर्टेंट, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। बट जब भी अगर आपने मन में संकल्प लिया है, सोचा है कि हफ्ते में 2 घंटा या 1 घंटा या 3 घंटा, वट एवर इज सुटेबल टू, सेवा के लिए देंगे, तो वो 3 घंटा में ऐसे लगन के साथ तो काम करके देखो, कैसे ड्रॉप होने लगेगी डिजायर्स। ये मेरे अनुभव से मैं बता रही हूँ। Isn't it? मयूर जी, आपका क्या अनुभव है? Yes? मेरा तो हमेशा गुरुदेव के साथ ऐसा ही अनुभव रहा है। बट एक्चुअली दिस ब्रिंग्स टू वन पॉइंट, वो जो हमेशा गुरुदेव भी इसके बारे में पॉइंट आउट करते हैं। ऑल्दो वी कैन, हिंदी में बोलता हूँ, सारी हम लोग मटेरियल जितनी भी इच्छाएं हमारी छोड़ सकते हैं, बट जब गुरुदेव सामने होते हैं तो ये सब भूल जाते हैं। एंड हमारा जो डिजायर होता है, दैट मेक्स अस डू वेरियस थिंग्स। हम लोग गिरते पड़ते हैं गुरुदेव को छूने के लिए, उनके पास से दर्शन लेने के लिए, उनसे कुछ सुनने के लिए इतने बेताब हो जाते हैं। तो वो वाला डिजायर, व्हाट इज दैट डिजायर नाउ? यस। तो देखो कैसे है ना, गुरुदेव भी अभी तो उन्होंने मुमुक्षुत्व के बारे में बताते हैं, तो बोलते हैं हाँ, ये सारी इच्छाएं जब तक मिट नहीं जाती, चाह मिट नहीं जाती, बाकी के मटेरियल वर्ड को लेकर हो या बाकी सब चीजों को लेकर हो, आपका प्रोफेशन, आपके घर की जिम्मेदारी और कुछ इच्छाएं बहुत सारी हो सकती है, होती भी है। वी हैव टू एडमिट दैट एंड एक्सेप्ट इट। बट ये सारी इच्छाएं मिटने तक वो एक इच्छा बना के रखो, ईश्वर को मिलने की इच्छा।
उन्होंने क्लियर कट बोला है। ये सारी इच्छाएं जब तक मिटती नहीं है, वो चाह वो इच्छाएं मिटने तक, ये जो है ना, जैसे मयूर जी ने बोला, हाँ, वो डिवाइन सेवा और डिवाइन को मिलने की इच्छा बना के रखो। सेवा में हेल्दी कंपटीशन लगा सकते हैं, कंपैरिजन भी हो सकता है माइंड में, अरे उसको इतना मिल रहा है, अरे ये सब कुछ होता है, जजमेंट, कंपटीशन, लॉजिक, कितना कभी दुख होता है, अरे इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, जाके बैठ गए स्टेज में ही, या बहुत कुछ चलता है अपने मन में। लेकिन ये जो कुछ भी है, एज लॉन्ग एज आपको गुरुदेव को मिलना है, ये अगर अंदर से स्ट्रांग है। और मैंने तो ये भी देखा है, जैसे मैंने वो युवाचार्य का एग्जाम्पल बताया, तो बहुत बार मैंने ये देखा है, जैसे ही कोई डिवोटी के मन में इच्छा आ जाती है, गुरुदेव से बात करनी है, कुछ पूछना है या कुछ मिलना जरूरी है, कहीं से भी तो वो पहुंच ही जाते हैं। कई बार ऐसे होता है दर्शन लाइन में, कभी कभी अपने को लगता है हमें तो पूरा बैक में सीट मिला, एंड सडनली ही एंटर्स, वो पीछे वाले रो से शुरू करते हैं उसको बहुत अर्जेंट। मेरे साथ ही एक बार हुआ था, मेरे साथ जो आई हुई थी लेडी, उसको वापस निकलना था, वो बोली अभी मेरा दीदी मेरा बैक में लास्ट रो में आया नंबर, अभी कैसे मैं गुरुदेव को मिल पाऊंगी। शी वाज started crying in the ashram. So suddenly Gurudev came in the last row. तो ये बहुत इंटेंसिटी है, वो हिसाब से वो अपने को तो बरोबर पहुंच ही जाते हैं, isn't it? है ना, ये अनुभव भी किया होगा आप लोगों ने। तो बस मैं तो ये बोलूंगी कि जितना तक हमने ये सेवा में अपना मन को लगाया, अपना समय दिया, अपने आप को ये एक्शन में इन्वॉल्व किया, तो वो ड्रॉपिंग आसान हो जाता है। और दूसरा है ध्यान के द्वारा, गिविंग डीप रेस्ट to your system by meditation. Giving deep rest is very important, and that happens only through meditation, not otherwise. Yes, yes, Ashwini. Huh? Anything else you want to say or ask? बाकी भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते। No, thank you so much. मैं जरूर अभी कोशिश करूंगी। Yes. Yeah. तो देखो ये दोनों कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी था। बुद्धा has said desire is the cause of all misery. Vasishtha said desire is cause of pleasure. Isn't it interesting? तो जो चीज से प्लेजर, खुशी मिलती है, उसी चीज से दुख भी मिलता है, गारंटेड, अश्योर्ड, isn't it? वही उन्होंने आगे एक्सप्लेन भी किया है, जैसे because all our senses has got the limit to experience the pleasures, isn't it? कितना तक, कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सुंदर म्यूजिक, कितना तक सुनेंगे, 1 घंटा 2 घंटा, नॉट फॉर 24 आवर्स। बहुत अच्छी चीज है खाने में, मे बी सम रसगुल्ला या गुलाब जामुन आपके पसंद की है, बहुत अच्छी है, टेस्टी है, प्यार से कोई खिला रहे, 4 खाएंगे 5 खाएंगे शायद एंजॉय करेंगे, बट वही 20-25 खाएंगे तो instead of giving you pleasure it starts giving you pain. Not only गुलाब जामुन, कितने न्यूट्रिशन वाले चीजें है, ड्राई फ्रूट्स है, बहुत अच्छी चीजें, बहुत ज्यादा खाने से बहुत ज्यादा खुशी नहीं मिलती है। कितने लोगों का अनुभव है? सिर्फ खाने पीने के बारे में ही नहीं, सुनना, देखना, है ना, सूंघना, जैसे गुरुदेव हमेशा एग्जाम्पल देते हैं, जो परफ्यूम या ये सब के फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को शायद गोबर का स्मेल बहुत अच्छा लगता होगा उनको, नेचुरल, है ना। तो ये जो है, क्योंकि उसका तो, मुझे तो एलर्जी है, बहुत सारी केमिकल्स यूज है, मेरी बेटी तो मुझे बहुत क्रिटिसाइज कर रही है, सुगंध क्या एलर्जी है, डिओज एंड परफ्यूम्स, आई कांट। तो इतना सेंसिटिव हो गया सिस्टम, मुझे तो नहीं चलता है, गले में पकड़ लेता है। तो ये जो हो गया अपना, प्यूरिटी आ गया ना पूरा नेजल पैसेज में, इतना सारा प्राणायाम करके रेगुलर प्रैक्टिस से, तो अपने को तो नहीं होगा, बट कुछ कुछ लोगों को उसके बिना नहीं चलता है।
तो ये जो है ना, सुनने की चीज है, देखने की है, सुनने की है, जो भी है, टच करो या और कुछ तरीके से, हर चीज का सेंसेस को अपना लिमिट है। इसीलिए ऐसे गुरुदेव ने भी बोला है, गुरुदेव बोलते हैं 24 घंटा नहीं ध्यान करना है। ध्यान अच्छी चीज है, 20 minutes in the morning, 20 minutes in the evening, if you have learned Sahaj Samadhi Dhyan, isn't it? नहीं तो गुरुदेव के बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशंस अवेलेबल है, 1 in the morning, 1 in the evening, you can do like that, but not for 24 hours. जैसे गुरुदेव कहते हैं, एक बार शॉवर लिया, नहा लिया, स्नान कर लिया, तो आपको पूरा दिन फ्रेश लगता है। अगर गर्मी ज्यादा है तो दूसरी बार नहा लेते हैं शाम को फिर से, कोई बात नहीं, बट नॉट फॉर 24 आवर्स। तो ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जो शुद्धि हो गई, जो डिप्रेस मिली, तो थोड़ा सा सेवा की तरफ भी अपने को लेके जाना है ना। तो प्लेजर, जो भी चीज हमें बहुत खुशी देती है, वो बहुत मिलने पर खुशी नहीं मिलेगी, इट विल टर्न इनटू पेन। एप्लीकेबल टू मनी ऑल्सो, डू यू ऑल एग्री? बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा खुशी अगर दे सकता था तो कितना सारा, एक कुछ परसेंट, 5%, 10% कैटेगरी के लोग तो एटलीस्ट प्रसन्न खुश तो दिखना चाहिए थे। बट आजकल के न्यूज तो कुछ और ही बता रहे हैं हम लोगों को, है ना? Isn't it? Actually they are not, है ना? सारा सिक्योरिटी गार्ड के साथ जीवन बिताना और कुछ बच्चों के रेव पार्टीज और कुछ एडिक्शंस के न्यूज सुनना, ये सब तो क्या दुख नहीं देगा तो और क्या देगा, isn't it? तो बहुत ज्यादा पैसा, not giving that great pleasure applicable to everything, each and everything, isn't it? Yes? Any other thing? हाँ, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं या शेयर करना हो कुछ। नहीं? What you say, Marji? Huh? So a concluding para is so interesting. What Gurudev is saying, I tell you, when you desire truth, all other desires drop off. Truth is what exists, what is now, what is in this moment. You always desire something that is not there, but truth is always there. ये भी हमारे मन के एक टेंडेंसी आप ऑब्जर्व करो। हमारा मन किसके पीछे भागता है? एग्जैक्टली जो हमारे पास नहीं है ना? जो चीजें है ना, उसको देखने के लिए समय है, ना उसको उपभोग लेने के लिए भी कभी कभी समय है, ना कुछ निकाल के देखते हैं। जाके चेक करो अपने कपबोर्ड्स, क्या क्या भर भर के रखा है, कितनी सारी चीजें। कब उसको हाथ लगाते हो? अभी दिवाली क्लीनिंग करेंगे तो थोड़ा थोड़ा इधर का उधर पोजीशन चेंज करेंगे बस। कब पढ़ा है इतने सारे बुक्स, कब सुना है इतना सारा म्यूजिक, कितना सारा कलेक्शन होगा आपके पास, है ना? तो बस, बट कुछ नया आ गया मार्केट में, मेरे पास नहीं है, मे भी आईफोन का कोई नया मॉडल या और कुछ मेरे पास नहीं है, तो मन भागता है उसके पीछे, आई वॉन्ट दैट। ये हमारे मन की टेंडेंसी है। वो सिर्फ आईफोन ही नहीं होना चाहिए, छोटी सी भी कोई चीज हो सकती है, बट मेरे पास नहीं है तो मन उसी के पीछे भागेगा। हैव यू ऑब्जर्व दिस? एग्जैक्टली मन उसी के पीछे भागता है जो हमारे पास नहीं है। इसीलिए हमारी इच्छाएं पूरी होने के बाद भी हमें बहुत खुशी नहीं मिल पाती है। हैव यू ऑब्जर्व दिस? क्योंकि इच्छाएं पूरी हो गई तो क्या होता है, नई सारी इच्छाओं की लिस्ट अपने मन में एक तो रेडी रहती है, क्योंकि नई नई चीजें, तो मार्केट इज सो फास्ट, टेक्नोलॉजी इज मूविंग सो फास्ट, इजंट इट? दैट इज वन थिंग। और क्या है ना, कुछ चीज हाथ में आ गई तो लगता है व्हाट अ बिग डील, इट इज नथिंग। हैव यू ऑब्जर्व दिस? जब तक नहीं थी इट वाज अ बिग थिंग फॉर अस, एक बार मिल गई, अचीव कर लिया, कुछ भी नहीं के बराबर होता है। जिसको बुद्धा ने बोला है यू फील एम्प्टी, बट वो खाली हो जाना
अवेयरनेस के साथ जरूरी है। गुरुदेव तो बोले ही है कि ये कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं, इट इज नथिंग, ये एक ना एक दिन महसूस होने ही वाला है, बट ये जितना जल्दी हो जाएगा, थ्रू नॉलेज एंड अवेयरनेस हो जाएगा, तो आप अपने आप को अच्छे से स्टॉप कर पाएंगे, isn't it? नहीं तो मिलता जाएगा, पीछे भागते रहेंगे और बार बार वो एहसास भी आ जाएगा, इट इज नथिंग, इट इज नथिंग, इट इज एम्प्टी। बट कितनी चीजें पाना चाहिए इसके लिए, ये एहसास होने के लिए पता नहीं, किसी किसी को बहुत जल्दी भी हो जाता है एहसास, और फिर वो अपने आप को, ये जो गुरुदेव बता रहे ट्रुथ, कल का सबने सुना, शैल आई रीड इट फॉर यू, इट इज ऑल्सो रिलेटेड। कल जो गुरुदेव ने बताया इन द इवनिंग इन सुदर्शन होमा के बाद, कितने लोगों ने सुना है, पढ़ा है? तो मैं नहीं पढ़ूंगी। इफ यू वांट टू हियर इट अगेन, आई विल रीड इट फॉर यू। यू वांट टू टेल मी, नो, एटलीस्ट you want to, yeah, it is related to today's topic also. Yeah, I will read it. Message by Gurudev today during Sudarshan Homa, that was yesterday. 3 types of bhajans. Stuti, number 1 is Stuti, singing the glory of the divine. By singing your consciousness expands. हम किसी की कभी स्तुति करते हैं तो हमें अंदर से विस्तार का, एक्सपांशन का अनुभव होता है। It kindles deep love, the devotion that will uplift your consciousness. Number 2 is prarthana, prayer. Whatever is your need and botheration, and that you offer, you become free. To God, all desires, etc., whatever is right, Mother Divine knows, and that will be fulfilled. तो ये एक मन में श्रद्धा हो कि मेरे लिए बेस्ट क्या है, वो माँ भगवती या जो हायर पावर, दिव्य चेतना शक्ति को ठीक से पता है, और वही वो मेरे लिए देते जाएंगे, करते जाएंगे। ये पूरी श्रद्धा मन में होने से ये भक्ति के साथ डिजायर्स, इच्छाएं और सारी परेशानियां अपने आप ड्रॉप हो जाती है। Upasana, third is Upasana. Upasana is creating a relationship with the divine in a very deep sense that you are part of it, and Mother Divine is part of you, even the confusion. So recognizing the connection with divine, God is with me here right now. This makes life celebration and realize that you are totally dependent on divine. Invoke the truth that all is one. God is not difficult to achieve. He is already here. All that you need to do is rest, relax. In deep rest, divinity dawns, and Navratri is the celebration that I am she and she is me. मैं वही माँ भगवती हूँ और भगवती माँ मेरे अंदर ही है। And it is all of divine, permeated by divine. ये सब कुछ जो चलाया जा रहा है वो दिव्य शक्ति, माँ शक्ति भगवती के द्वारा ही किया जा रहा है। Deep rest and deep peace is the way to realize God is here. What stops from reaching that is our mind. So follow these 3 types of bhajans. You have to do this now, right away, then life becomes a celebration. Isn't it beautiful? भजन 3 प्रकार से बताया कल गुरुदेव ने। स्तुति करना, दूसरा है प्रार्थना से, दूसरा है उपासना से। तो गुरुदेव तो हमेशा कहते थे, जब भी वो कोई सत्संग में वगैरह आते थे, कि मैं बार बार इसलिए आता हूँ कि आपको ये याद दिलाने के लिए कि वो
हायर पावर, वो ईश्वर की शक्ति माँ भगवती आपसे बहुत बहुत प्यार करती है, आपको बहुत चाहती है, वो हमेशा आपके साथ है। बस यही नोट पर हम आज का कंक्लूड करें। व्हाट टू से?